السلام علیکم، صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. ویسے بات سنیں، آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی 2.5 مہینے کے بعد ہم 2025 سے واک آؤٹ کر جائیں گے. مطلب اتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے. ابھی لگتا ہے کہ جنوری میں ہم نے نئے سال کا آغاز کیا تھا، اتنی دعاؤں کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کیا تھا، اور اب اگر ہم دیکھیں تو بھائی صرف 2.5 مہینے دور اور 2025 بھی ہماری زندگی سے چلا جائے گا. یعنی کہ یہ 2025 جس کو ہم سوچ رہے تھے آج سے بالکل لگ رہا ہے کل سوچ رہے تھے کہ 2025 میں پتہ نہیں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، لیکن 2025 ہم نے اس کو جیا بھی، اور اب صرف اور صرف 2 مہینے اور 16 دن کے بعد یہ 2025 بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. تو بھائی ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اور میں کبھی کبھی اکثر ڈسکشن میں کہتی ہوں کہ بھائی اگر ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے وقت اچھا گزر رہا ہے. کیونکہ اگر وقت رک جائے اور وقت برا ہو، او مائی گاڈ، اس سے بڑا خوفناک خواب اور کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا، جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، ہم یہ بالکل احساس ہی اس بات کا کریں کہ ہم بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بھی پتہ نہیں کتنے ہی ایکسپیرینسز ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں اپنی زندگی میں مجھے ابھی لگتا ہے کہ بالکل کل کی بات ہے کہ جب میرا اسکول کا لٹرلی پہلا دن تھا اور امی اسکول چھوڑنے جا رہی تھی، اور اب ایک دم سے میں دیکھتی ہوں کہ بھئی میں کہاں کی کھڑی ہوں. مطلب آدھی سے زیادہ زندگی تم نے بھی گزار لی ہے، اور کیا پتہ پوری زندگی گزار چکے ہوں. زندگی کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن بھائی زندگی گزارنے کا گر یہ ہے کہ آپ جیسے گزاریں اس کو گریسفلی گزاریں. ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں ایج کرنے سے، اور مسلسل آج کل میں لوگوں کے اندر ایک ٹینشن دیکھ رہی ہوں. میں آج کل 13-14 سال کی بچیوں میں ٹینشن دیکھ رہی ہوں کہ ان کو رہا کہ اللہ ہم جلدی ایج نہ کر جائیں. وہ جلدی ایج نہ کر جائیں کہ خوف سے اتنا کچھ کریں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ جلدی ایج کر جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کی جو ایج ہے وہ زیادہ لگنے بھی لگ گئی ہے. لیکن دیکھیں، everybody has to age. this is something very natural. اور اس کے لیے کوئی ریوائنڈ بٹن نہیں ہے. ہاں، ریوائنڈ بٹن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے آپ اپنی زندگی کے ہر فیز کو لوگوں کے لیے اتنا آئیڈیل بنا دیں کہ لوگ کہیں یار واؤ، کہ اچھا اگر آپ 20 کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں یہ پازیٹیو جو ہے تبدیلیاں آئیں گی. آپ 30 کراس کریں گے تو اچھا یہ زبردست چیزیں ہو جائیں گی. اور مجھے لگتا ہے انسان سب سے زیادہ خوبصورت جو ہوتا ہے نا وہ اپنی 30 کے بعد ہوتا ہے. آپ 40 جب کراس کر جائیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں اور گریس آ جائے گی. اور جب آپ 50 کراس کریں گے، کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھنے کے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 50 از دا نیو 20. تو یہ آج یہ جو ایگزامپل جو لوگ سیٹ کرتے جا رہے ہیں نا، آج میں نے ان سے جاننا ہے کہ انہوں نے، ویسے تو کسی کے پاس یہ گر نہیں ہے کہ وہ وقت کو روک لے، لیکن انہوں نے یہ وقت کیسے روکا ہے. آج میں ان سے جانوں گی. اور اس سے پہلے کہ آج ہم اس زبردست گر کے حوالے سے بات کریں، تو جناب آج میرے ساتھ میرے شو میں اتنی پیاری خواتین ہیں جنہوں نے اس پروسیس کو somehow روک لیا ہے. اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ایج گریسفلی. وی آل آر ایجنگ، اینڈ ہمیں یہی گر سیکھنا ہے کہ گریسفلی ہم نے ایج کیسے کرنا ہے. میرے ساتھ موجود ہے صبا فیصل، میرے ساتھ موجود ہے منزہ عارف، اور میرے ساتھ موجود ہیں زیبا علی. السلام علیکم پریٹی گرلز. کیسی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ الحمدللہ. اچھا، یہ ہم بلکہ لاسٹ ٹائم جب منزہ جی ہمارے شو میں بھی آئی تھی تو منزہ جی نے بھی کہا تھا کہ مدیحہ اس چیز پہ ضرور بات کرے کہ انسان جب ایج کرتا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، ہم سب کو ایج کرنا ہے، تو آپ نے گریسفلی ایج اس کو کیسے کرنا ہے نا. کیونکہ اکثر ہم لوگ بھی بہت زیادہ اسٹرگل میں لگے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی نہیں، کس طرح سے روک لو، کس طرح سے روک لو. اور میں نے بندوں میں نہیں دیکھا، somehow خواتین میں زیادہ پریشر ہوتا ہے. میں بھی شاید ان کو ایشین بھی زیادہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر میں صبا جی آپ سے پوچھوں کہ ود اے پیسج آف ٹائم آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کی تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں، جب آپ یہ جو ایج کا ذکر کر رہے ہیں، 20-30 کی ایج میں ہوتے ہیں تو آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی اسٹرگل، آپ کو اپنی ہوش نہیں ہوتی. آپ بچوں کو پالنے میں، گھر بنانے میں، رشتے بنانے میں، اور ان سب مصروفیات میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا تو ہوش ہی نہیں ہوتا. ہوش آتا ہی 40 کے بعد ہے. 40 کے بعد جب آپ کو فرصت ملتی ہے ان ساری مصروفیات سے، پھر آپ اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں تو اس ایج میں جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو اپنے وائٹامنس کا خیال کرنا ہے، آپ کو اپنے بالوں کی، اسکن کی کیئر کس طرح سے کرنی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ فرصت میں جو چیز کی جاتی ہے نا، بیک آف دا مائنڈ آپ کے کوئی بیگیج نہیں ہوتے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اب جینے کا بہت مزہ آ رہا ہے.
تو وہ جو آپ نے 20-30s کی بات کی تو اس میں وہی بات کہ آپ کا ٹائم اسٹرگل میں نکل گیا. بالکل. دیکھیں یہ بہت بڑی مثال ہے. جب آپ کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں نا ان کو آپ بہت ٹائم دیتے ہیں. اب میرے ہسبینڈ انہوں نے اپنے بچوں کے قریب بھی نہیں گئے تھے. بچے بالکل انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا تھا, بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں تھے. اب جو بچوں کے بچے ہیں تو فیسی کی زندگی انہی کے ارد گرد ہے. میں تو ابھی بھی مصروف ہوں لیکن ان کی زندگی انہی کے نزدیک ارد گرد گھومتی ہے کیونکہ فرصت ہے. اور وہ چیز جو انہوں نے تب مس کر دی ابھی اسے انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے ذہن میں اور کچھ نہیں ہے. لیکن سمجھے ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں مرد جو ہے نا وہ پہلے بچوں کو اگر بہت زیادہ افیکشن شو کرتے تھے, بچوں کو گود میں اٹھا کے سنبھال لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے اے ویکھو, سگے ماں باپ کہتے تھے کہ بھائی تو جورو کا غلام بن جورو کا غلام, وہ بندہ اپنے بچے کو پال رہا ہے. اور آج کل تو آج کل کے جو بچے ہیں, ہم میرے اپنے بیٹے ہیں, میرے بھائی کے بیٹے ہیں, بہنوں کے بچے ہیں, وہ سب اپنے بچوں میں اتنے انوالو ہیں. جب وہ آتے ہیں تو دونوں انہوں نے گود میں بچے اٹھائے ہوتے ہیں, بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں. اور ہمارے زمانے میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن مجھے یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے, آپ کے بچے ہیں بھائی, آپ دونوں میاں بیوی مل کر انہیں پرورش کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر بندے کہتے ہیں کہ او بھائی آج میری بیگم کام پہ گئی ہوئی ہے تو میں بیبی سیٹنگ کر رہا ہوں. تو میں کہا بیبی سیٹنگ کیا ہوتی ہے بھائی, یہ پیرنٹنگ ہے, یہ آپ کا اپنا سگا بچہ ہے. آپ مجھے بتائیں آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو جو چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ ایج کبھی بھی وہ نہیں ہوتی جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ چھپتی ہے. ایج از ہیئر. آپ کا دماغ چیزوں کو کیسے پروسیس کرتا ہے, آپ چیزوں کو کیسے لیتے ہیں, وہ آپ کی ایج ڈٹرمن کرتی ہے. اب میں نے کئی 20 سال 25 سال کے لوگ بڈھے دیکھے ہیں. آئی مین ان کی حرکتیں کہ ذرا سا چلنا پڑا ہے تھک گئے, اور تھوڑا سا کچھ کام کیا تو انرجی ہی نہیں ہے. اور کئی میں نے ایسے بہت ایلڈرلی خواتین مرد دیکھے ہیں جو اتنے فل آف لائف ہوتے ہیں, دے آر سو انوالوڈ ان لائف. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایجنگ از ناٹ اے ڈس ایڈوانٹیج, اٹس اے پریویلیج. تو جب تک ہم عمر کو اور عمر کے بڑھنے کو ایز اے پریویلیج نہیں لیں گے نا, اس کو ایک اللہ کی خاص رحمت نہیں سمجھیں گے, تب تک ہم ڈپریسڈ ہی رہیں گے. ہمارے معاشرے میں جنرلی, میں یہ نہیں کہہ رہی ہر جگہ, جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم ایج 40-50 کراس کرتے ہیں تو ہم چھپانے لگتے ہیں, ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا اب تو یہ ایلڈرلی فلانا, اور بچے بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ ڈسٹینس کرنے لگتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا ہی میوزک سننا ہے, اب ان کا میوزک آؤٹ ڈیٹڈ, ان کا کھانا ڈفرینٹ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا گیپ بہت بڑھ گیا. اچھا ویسے آپ نے بات کی, میں نے بھی ریسنٹلی ایک برتھ ڈے اٹینڈ کی ہے, تو اس میں ہماری بہت پیاری فیملی فرینڈ ہے, تو شی ٹرنڈ 50 اور ان کے گھر میں ایوری تھنگ واز 50. اور ان کو دیکھ کے کسی صورت میں نہیں لگتا تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ ان کی وہ 50 سال کی خاتون ہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ خاتون, اور وہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے وہ کوئی 30 سال کی خاتون ہے. اور ان کے میاں نے ہر چیز میں نے کہا یہ تو ٹو مچ 50-50 نہیں ہوگی, آپ کے میاں آپ کو بار بار بتا رہے کہتی نہیں میں خود بتا رہی لوگوں کو, اور پورے گھر میں بڑا بڑا کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے 50 سیلیبریٹ کرے. تو وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا. یہ میرا ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے. دیٹس ویری نائس, بیکاز جب تک ہم خود اس میں پرائڈ لینا نہیں سیکھیں گے نا, ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ I'm the lucky one, کہ اللہ نے یہ اتنی زندگی دی کہ میں نے اس ہندسے کو کراس کیا. بیکاز کتنے انسان ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ایک ایج لمٹ سے آگے جا ہی نہیں پاتے ہیں. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. زیبا آپ نے کیا ویسے فارمولا اپنایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایج کرنا ہے؟ مجھے پازیٹیولی ہیپیلی آئی وانٹ ٹو انجوائے ایوری ڈیکیڈ, اور مجھے بالکل بھی اس چیز میں پرابلم نہیں ہے کہ آپ چھپائیں یا آپ نہ بتائیں. اور ہر 10 سال جو آپ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک نئی چیز لاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو انجوائے اٹ. وہی جیسے یہ کہہ رہی ہیں, آئی سیکنڈ ٹو ہر وٹ ایور شی از سیئنگ, کہ آپ کو اس میں اپنی ایک پرائڈ فیل کرنی چاہیے. اٹس اے پریولیج. سو میں نے بھی ابھی ریسنٹلی, آپ نے ایک برتھ ڈے اٹینڈ کی ہے جو 50 کی ہوئی ہیں, میں ابھی اسی سال 40 کی ہوئی ہوں.
सो मैंने जितना हाईलाइट करके 40 को हर जगह लिखा है, मुझे मेरी दोस्त कह रही खुदा का वास्ता ना करो, तुम हो तो हम भी हैं, तुम हो तो हम भी हैं. तो आई वॉज लाइक कि नहीं, इट्स 40, इट्स लाइक आई एम रेडी यू नो टू ट्रांसफॉर्म. हमारा 40 जो एक औरत का 40 होता है, वो एक नई प्रेपरेशन है. सो इनफैक्ट मैं ये भी बात मेंशन करूंगी कि कल मुझे आपकी टीम का फ़ोन भी आया एंड दे ऑल वर कंसर्न के एजिंग टॉपिक है, सो आई थिंक हमने आपको गलत बुला लिया और आप अगर विड्रॉ करना चाहती हैं तो कर लें. एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, ये फैक्टर होना चाहिए. और सब एज कर रहे हैं भाई, और हम सब एज कर रहे हैं. और आपको जब आप एक टॉपिक को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप रखना चाहिए ना कि एक 40 का बंदा क्या बोलेगा, एक 50 का बंदा क्या बोलेगा, एक 60 का बंदा क्या बोलेगा. दैट इज हाउ पीपल विल रिलेट टू इट. ट्रू. सो एग्जैक्टली, बिकॉज पीपल शुड रिलेट, क्योंकि घरों में बैठी हुई औरतें 40 को दबा रही हैं, छुपा रही हैं, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं. इसकी बात ये कि हमारे यहाँ औरतों को बहुत ज्यादा एज शेम किया जाता है. आप अपनी मीडिया इंडस्ट्री देखिए, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताएं. मदिया जी, हम ही तो चेंज करेंगे इसको. अगर हम इस वक्त में मौजूद हैं तो हम ही तो इसको चेंज करेंगे, कोई बाहर से आके नहीं करेगा. लेकिन एक मुझे आप लोग अपने ईमान से बात बताएं. आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आप लोगों की एज के एक ऐसे टाइम पे कि वो लड़के, हमारे लड़के हीरो भी आ रहे थे, उनको कोई एज शेम वैसे नहीं कर रहा होता. लेकिन हमारे यहाँ अगर लड़कियां, मैंने स्पेशली देखा, अब तो शुक्र है टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन पहले अगर आप 30 जरा सी क्रॉस करते थे तो आपको फौरन बड़ी बाजी का या अम्मा को रोल में लग जाते. तो ये तो हमने तो ड्रामा इंडस्ट्री से देखा है. आई टोटली एग्री विद दिस. लेकिन उसमें ये भी तो है ना मदिया कि अपनी केयर ना की जाए, आपका वेट बढ़ जाए, आप अपनी केयर ना करें आप. और मैं एक बात कहूँगी कि जो एज है ना, उसमें जो एक्सपीरियंस है ना, उसका शॉर्टकट कोई नहीं है. एग्जैक्टली. ये जो हमने इतना एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल में इस वक्त हम 3 लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे सीनियर हूँ. हमने जो एक्सपीरियंस किया ना जिंदगी में, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं. और उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है. True. हमने जो चीज़ें इस ज़िंदगी में देखी हैं, जहाँ से गुजर कर आए हैं, हमें बहुत जगह ट्रोल भी किया गया, हमें बहुत जगह अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन हम उन सारे मराहिल से गुजर कर इधर पहुँचे हैं ना, तो हम पीछे मुड़कर जब देखते हैं ना, एक भीड़ है जो कोई मुंह छुपा रही है, कोई कह रही है कि मैं माँ का कैरेक्टर क्यों करूँ भाई, मेरी तो अभी एज नहीं है, अब मैं इसकी माँ बन जाऊँ. अब मैंने हमेशा लोग कहते हैं कि एवरीबॉडी हैज टू एज, को ये ना समझे. मैंने 25 साल पहले इस फील्ड में कदम रखा था माँ के कैरेक्टर का, और हीरो की माँ का कैरेक्टर. तो मैं आज तक चल रही हूँ. वो हीरो भी अब गायब हो गए हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ. मैं तब भी माँ थी, मैं अब भी. और फिर कुछ हैं हमारे फील्ड में ख़वातीन, वो कहती हैं हाय हमें आपा ना कहें, हमें बात. खैर, फील्ड में कहना भी नहीं चाहिए, आपको नाम लेना चाहिए, लेकिन ये भी इनसिक्योरिटी है ना. मुझे तो ऐसा कोई इशू, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि मेरी एज है और मैंने इस एज को बहुत ग्रेसफुली अपने साथ जोड़ कर रखा है, और इंशाल्लाह आगे भी जोड़े रखूंगी. मुझे तो इश्यू ही नहीं है. लोग तो एज छुपाते हैं, मैं तो बता देती हूँ. सब कह रहे होते हैं कि कौन बताता है, सब आप क्यों बता रही हैं. अच्छा, मुझे कहते हैं बंदे नहीं बता रहे. आजकल के मैंने बंदे देखे, बंदे जरा काट लेते हैं, नहीं बताते. हाँ, ये बंदे जरा, बल्कि जो खवातीन है, क्योंकि भाई इनकी जब शादियां होती हैं, जब बच्चे होते हैं, और बच्चों के बाद तो आपकी बॉडी की सारी डायनामिक्स ही चेंज हो जाती हैं. ट्रू दैट. ये तो मुझे भी तब समझ में आई कि जब मेरा अपना बच्चा हुआ ना, मैंने कहा यार ये तो बॉडी तो वो रही नहीं, ये मेरी नहीं सुन रही. ये पता नहीं किसकी सुन रही है. मदिया, बात ये होती है कि ये जो एज आती है 40 और इवन व्हेन यू क्रॉस 50, तो वो टाइम आता है कि जब ज़्यादातर उमूमन ख़वातीन में ना वो कोई माइलस्टोन उस तरह नहीं होता दैट यू लुक फॉरवर्ड टू. तो इवेंचुअली ना, मतलब जैसे एक लड़की है, उसकी शादी होनी है, वो स्किन केयर कर रही है, वेट कंट्रोल कर रही है, फिर 40s तक तो ये जज्बा बहुत कायम रहता है. फिर जब आप मेनोपॉजल स्टेज में जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता गिव अप करने लगते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के साथ मिथ्स बन जाती हैं. ये कर लो तो वज़न बढ़ जाता है. एक्चुअली हम खुद गिव अप कर रहे होते हैं. मुझे आई हैड अ फ्रोजन शोल्डर, लेफ्ट में हुआ.
आई थॉट ये कभी ठीक नहीं होगा, इट वॉज वेरी पेनफुल। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं एक थेरेपिस्ट के पास गई एंड ही टोल्ड मी कि जितना एक्सरसाइज करेंगी ये इतना ओपन होगा। तो ट्रस्ट भी मैंने उसी जज्बे के साथ किया एंड माई आर्म इज़ गुड एज न्यू। फिर उसके बाद राइट फ्रोजन शोल्डर हुआ कुछ सालों के बाद। तो आई मेट द थेरेपिस्ट, लेकिन उसने कहा कि अच्छा जिस जज्बे से आप कह रही हैं ना आप कर लेंगी। एंड अगेन आई डिडंट गिव अप। बहुत से मोमेंट पे होता है कि हाँ अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जज्बा और दिल जवान होना चाहिए, गेम तो वो है। तो वो उसको भी मैंने ठीक किया। तो कहने का मकसद ये है कि एज शुड नॉट बी अ बैरियर, कि आप समझें कि अब ये उम्र है, अब ये नहीं है, अब मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं या कर सकता। हम खवातीन को बहुत हाईलाइट करते हैं, हम बंदों को छोड़ देते हैं पीछे से वायदे हुए। सही बात। आदमी भी उसी तरह से एक एजिंग प्रोसेस में गुजरते हैं, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं। और मुझे लगता है कि नहीं, खवातीन की जरा प्रॉब्लम ज्यादा, उन्होंने बच्चे भी पैदा किए हैं, फिर उनके और भी ये मेनोपॉज का जो जिक्र करें, ये इतना बड़ा फैक्टर है, ये पूरा टॉपिक है। और मैंने इसमें से मैं गुजरी हूँ, मैंने 6 साल 7 साल वो जिंदगी गुजारी है कि जो घर जाके कमरे में सिर्फ मैं होती थी, मैं सोचती थी। और उसमें क्या क्या एक औरत के साथ होता है वो मर्द कभी सोच भी नहीं सकता। औरत जब बच्चा पैदा करती है उसके साथ 9 महीने में क्या क्या होता है मर्द कभी सोच भी नहीं सकता। मर्द की जिंदगी बस एज कर रहा है वो, ठीक है, हर चीज के बगैर वो एज कर। औरत के तो आप सोचें कि उसके मराहिल बहुत हैं, क्योंकि उसके अच्छा उसके इमोशनली भी और फिजिकली भी उसकी बहुत चेंजिंग्स। लड़की अपने घर में है, उसकी माइंडसेट और है, शादी होगी, ससुराल में आएगी, एक नई जिंदगी शुरू करेगी, उसे दोबारा से अपना स्टार्ट करना पड़ेगा अपना मेंटली तौर पर भी। फिर बच्चे पैदा, फिर माँ बन गई। फिर देखें जब आप शादी हो जाती है तो आपका प्रोसेस तो ख़त्म ही नहीं होता। उसमें अगर आपने खुद को संभाल लिया ना तो ये आपकी विल है। जैसे उन्होंने बताया फ्रोज़न शोल्डर, मेरी बैक पेन के साथ मैंने 1 साल फाइट की है। और मेरी जो थोड़ी सी नीचे हाँ वो ऐसे बल्ज हो गई थी। और मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा लाहौर का, और मैंने फिजियोथेरेपी नहीं छोड़ी। और मैं किसी को ये कंप्लेन नहीं करती कि मुझे तकलीफ़ है जी, मैं कहती हूँ ये मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये मुझे देखना है। मैं बच्चों से कहती थी गाड़ी निकालो भी मुझे डॉक्टर, अम्मा क्यों, मुझे जाना है डॉक्टर के पास। एक तो हम लोग जब हम कुछ एक एज क्रॉस करते हैं उसके बाद हम बच्चों को कहने से भी हेजिटेट करते हैं, तो भाई आप कहें ही क्यों, आप खुद को खुद क्यों ना देखें। मैंने उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। अब हम लोग हर रोज़ नहीं जा सकते, मैंने घर में अब मैं करती हूँ। मैं सुबह उठकर मैं 1 घंटा अपनी फिजियोथेरेपी करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने अपनी कमर ठीक कर ली। तो ये आपकी अपनी विल है। हाँ बिल्कुल। और मुझे जीना है अभी, भाई ये थोड़ी है। मुझे वैसे समझ आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने कराची में आके नोट की, क्योंकि हम 2 यहाँ के 3 इनफैक्ट लाहौरी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सुनती थी कि हाँ जी डिफरेंट इलाकों की भी ख़वातीन का एज करने का प्रोसेस डिफरेंट होता है। लाइक मैंने लाहौर में देखा कि एक सर्टेन एज के बाद, लाइक वंस आप ठीक है आपने 35 के बाद आप अम्मा हैं तो आपने बस अपने आप को छोड़ दिया। फिर आपने कहा अब तो मैं हमारे हाँ कि अब तो लो जी। मैंने अपनी अम्मा को भी देखा कि मैं माई अम्मा वॉज लाइक जब व्हेन शी वाज 35 छोटे छोटे, तो अम्मी कहती थी बेटा अब तो हम बड़े हो गए ना। तो अम्मी सोचते थे अच्छा अम्मी बड़ी होगी, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं अब कोई चीज़ होती थी हमें लगता था हमारी अम्मी तो पता नहीं कितनी बड़ी है। जब मैं कराची आई तो मैंने कराची में देखा कि नहीं, कि यहाँ पे और ख़वातीन जो हैं वो ज़िंदगी जीती हैं, वो उनको वो एज के नहीं, वो इसमें फंस नहीं गई। वो अगर 50-60 से ऊपर भी चली गई हैं तो वो अपने आप को अगर यंग कंसीडर करते हैं, विच इज़ गुड। क्योंकि हमारी वो मैंने अपनी अम्मा को देखा कि जब मेकअप वाला छोड़ दिया, मेरे खाला वाले ने कहा नहीं ये चीज़ नहीं है। तो ये जगह जगह भी है। वैसे इससे बड़ी अच्छी बात मेरे जहन में आई है कि हम अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग देते हैं। बच्चे पैदा हो गए, बस बच्चों की ज़िंदगी है, औरत कुछ भी नहीं है। अपना वक्त, अपना पैसा, अपना कीमती टाइम सब बच्चों को दे दिया। बच्चे बड़े हो गए, खुद बुढ़े होके साइड पर बैठ गए। और आप अगर बच्चों को, मेरे नज़दीक बच्चों को कोई अपना गिफ्ट देंगे ना माँ बाप, तो वो
بعد کی ایج میں گڈ ہیلتھ اور گڈ ویلتھ آپ ماں باپ کی ہے نا تو بچوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے. یہ سی بات بالکل صحیح ہے. اور اسی بات کے ساتھ میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے ذرا پہلی مینوپاز کے حوالے سے بھی, کیونکہ خواتین میں یہ سٹیج آتی ہے اور آج کل میں بتاؤں پلیز لڑکیوں کو خود کو پہلے سے تھوڑا سا ریڈی کرنا ہے, کیونکہ اب پیری مینوپاز آپ ارلی 30s میں بھی اس کو ہٹ کر رہے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ مڈ 40s میں آپ اس کو ہٹ کریں گے یا پھر آپ کو لیٹ 40s میں, لیکن اب یہ پہلے ہو رہے ہیں. آف کورس ہماری خوراکیں ایسی ہیں, اور اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ پہلے کہاں خواتین اتنا جم جاتی تھیں, اب تو لڑکیاں 16-17 سال کی لڑکیاں جو ہے وہ جم جا رہی ہوتی ہیں. اور کسی بھی میں اکثر جب میں جم کرنے جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ جو اچھی جو میری اماں کی عمر کی آنٹی ہوتی تھی وہ سب سے زبردست ورک آؤٹ کری ہوتی تھی, اور میں دوسرے ہی ریپ میں نا میں اللہ کو پیاری ہو چکی ہوتی تھی. تو میں ان کو دیکھ رہی تھی, میں نے کہا یہ میں نے ایسا بننا ہے. بس میں یہ سوچ کے خوش ہو جاتی تھی کہ یہ میری موٹیویشن ہے, لیکن کر میں کچھ نہیں رہی تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے. پر میں کہتی یار ابھی ٹائم ہے, چاہ رہی تھی کہ میں ایسی ہوں میں کہتی میرے پاس ٹائم ہے, میں پہنچ جاؤں گی. دیکھو نا یہ زبردست, یہ پہنچی ہوئی نا, میں بھی ایسے سے پہنچ جاؤں گی. آپ نے اپنے فٹنس گول جو وہ کب سیٹ کیے؟ ویسے تو آئی بلانگ ٹو اے فیملی جہاں سب لوگ ہی تھوڑا فٹنس کانشیس ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے جو سسر تھے وہ بہت فٹ تھے. تو وہ اگر کوئی ذرا سا اوور ویٹ ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے یہ فٹ کلب ہے اور یہ موٹا کلب ہے. تو وہ اس طرح سے جو ویٹ گین کرتا تھا وہ کہتے ہیں یہ موٹا کلب ہے. تو سب شرم و شرمی اپنے آپ کو مینٹین. لیکن دیکھیں ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ سیریسلی اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. اور آپ نے ٹائم کب آیا جب آپ نے انویسٹ کرنا شروع کیا؟ ویسے تو لائک شادی سے پہلے بھی آئی یوز ٹو ڈو ایروبکس, بیکاز مجھے پتا تھا کہ ہماری فیملی میں بہت زیادہ ٹینڈنسی ہے ویٹ گین, اور وہ بھی لوور بیلی سے, ٹورسو سے نیچے آن ورڈز. تو وہ مجھے اتنی وہ تھی ایک یہ جو ٹپیکل پنجابی فیملی کے مسئلے پہلے جو آپ بتا رہی ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ جینیٹک چیز تھی, اس کو میں اوائڈ نہیں کر سکتی تھی. تو آئی ڈڈنٹ وانٹ ٹو ہیو اے ہیوج چوڑی باڈی. تو وہ تب کرتی تھی. پھر بچوں کے بیچ میں فلکچویٹ کرتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد سے آنورڈ آئی ٹیک کیئر آف مائی ڈائٹ. ناٹ کہ میں وہ والی ڈائٹ نہیں کرتی کہ میں یہ نہیں کھا رہی, وہ آئی ٹیک, لیکن بس پورشن مینٹین کیے. آئی ڈو ایکسرسائز. میں اپنی بیٹی کے ساتھ کارڈیو کرتی ہوں, اس نے مجھے لگایا ہوا ہے, اور 30 منٹ کارڈیو ہوتی ہے جس میں پراپر سویٹنگ ہوتی ہے, لیکن بہت مزہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئی ڈو لرن سم تھنگ نیو. جب تک آپ اپنے دماغ کو نئے چیلنجز نہیں دیں گے نا, آپ کا دماغ اولڈ ہو جائے گا, اور پھر آہستہ آہستہ الزائمرز کی طرف انسان جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے آئی وڈ آسک آل دی لیڈیز, آل دی جینٹل مین کہ کچھ نیا سیکھیں. چلے اور کچھ نہیں تو چکن کڑھائی کی کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کرے. آئی ہیو ڈن بیڈ ایکسپیریمنٹس آلسو. کبھی کچھ برا بھی بنتا ہے, لیکن کبھی کبھار بہت اچھی. میں نے بھی بیکنگ سیکھی ہے. آئی ڈیڈ اے کورس ایٹ اے کلنری اسکول. ابھی ریسنٹلی آئی ایم اے سرٹیفائڈ ہوم شیف ناؤ. کیا بات ہے, زبردست. یہ پروسیس رکتا نہیں ہے لرننگ کا. ہاں, اور اتنا مجھے مزہ آتا ہے. میرے بچے مجھے موٹیویٹ کرتے, کہتے ہیں یو جسٹ فریم اٹ اینڈ ہینگ اٹ سم ویئر نا, آپ یو آر اے سرٹیفائڈ پرسن. تو وہ ایک جو خوشی آتی ہے, کیونکہ دیکھیں ایجنگ کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے نا تو وہ آپ کے ہیپی ہارمونز ہیں. ایکسرسائز سے ڈیولپ ہوتے ہیں, کچھ نیا سیکھنے سے ہوتے ہیں, چیلنج سے ہوتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں چیلنج ختم ہو جائے نا تو آپ ایج کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تو 100 دفعہ پکایا ہے, 100 دفعہ کیا ہے, اسی کو تھوڑے نئے ٹویک سے, نئے چیلنج سے کر لیں. پھر یہ کہ آپ کے بچوں کا, آپ کے جو پیپل اراؤنڈ یور فیملی ممبرس کا بڑا رول ہے. وہ آپ کو کتنا انکریج کرتے ہیں, آپ نے بھی بات کی نا کہ جب آپ کے چیلنجز ختم ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں خواتین کو لگتا ہے چلو اب بچے میرے ہو گئے, بس سب سے بڑی ہمارا بس اب ختم. مطلب جو میرا دنیا میں آنے کا پرپس تھا وہ پورا ہو گیا ہے. تو بس اللہ میاں اب تیری مرضی جو بھی. تو مطلب وہاں پہ جینا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, اور ایک بہت ضروری چیز ہے ٹو ہیو یور فرینڈز اراؤنڈ. اپنی دوست ملنا ملانا رکھیں, اوور ایک چائے کے کپ کے لیے مل لیں, چھوٹی موٹی پارٹی رکھ لیں. پارٹی سے مراد ہے کہ ملاقات ہونی ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے مطلب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا, میرے گرینڈ پیرنٹس کے پاس اکثر کوئی نہ کوئی آیا ہوتا تھا. ایک پیالی چائے,
2-4 बिस्किट, लेकिन बात ये थी कि कॉन्वर्सेशन, चाय बनाते हुए किसी को मौत भी नहीं पड़ती थी, बिल्कुल नहीं मौत सब बहुत खुशी खुशी करते थे। और वो चाय वो जस्ट अ फॉर्मेलिटी, छोटी सी, असल वो घंटों बैठ के गप्पे लगाते। तो बजाय इसके कि हम सास बहू और ये वो चिक चिक चाचा में पड़े, उसको वो बच्चे तो हमारे ड्रामा कर रहे हैं तो और आप साथ से भी बैठे हैं हमारे फेवरेट दिमाग को बिजी रखें। पेट रख लें, अगर आप अकेले हैं, बच्चे बाहर चले गए, आप अकेले हैं तो कोई पेट पाल लें, बिल्ली है, मतलब कोई जो भी। जिम्मेदारी साथ रखे। हाँ, आप मुझे बताएं, आप अकेली, तो आपने अपने लिए वैसे क्या जिम्मेदारी जैसी रखी हुई है? और आप मैं कभी फ्री नहीं होती हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने साथ। और मेरा ये रिचुअल तो व्हेन आई वाज 16 तब से स्टार्ट हुआ है। सो मुझे तो ब्रेक लेना पड़ता है कि मैं निकलूं और किसी को कुछ करवाना या करना या कुछ होना है तो चलो मैं उसको भी देख लूं। तो वो फिर बिकॉज बहुत रूड हो जाते हैं आप। सो मेरा अपना कोई ऐसा अभी तक रिचुअल मैंने नहीं बनाया टुवर्ड्स हेल्थ, टुवर्ड्स आगे क्या करना है। हाँ, इट्स जस्ट अ वेकअप कॉल फॉर मी राइट नाउ। अब मैं अपनी प्रेपरेशन बना रही हूँ कि अब मुझे हेल्थ गोल्स क्या अचीव करने हैं, मुझे वर्कआउट्स किस तरह करने हैं, मुझे खाना किस तरह खाना है। बिकॉज अब तक ना एक सॉर्ट ऑफ लाला लैंड चल रहा था, क्योंकि यू टेक इट फॉर ग्रांटेड ना, हाँ ठीक है सब सही है अभी कर लूंगी ऐसे कर लूंगी। बट अब मुझे महसूस हो रहा है नो, टेक इट सीरियसली। अब वो वाला सीन नहीं रहेगा, अब सीन बदल जाएगा। आप ही की बात से एक चीज मुझे याद आई है। कहते हैं कि जो भी आप अपनी जिंदगी के साथ अप टू 30 करते हैं वो आपको रिटर्न मिलेगा 40s में, 40s 50s लेटर एज में आपको उसी का रिटर्न मिलेगा। वही इतना बुरा खाया है। अच्छा, ये एक्चुअली ट्रू है। ये बिल्कुल ऐसे ही ना सादिया मुझे हमेशा कहती है अम्मा आप कितना खा रही हैं, कितना खा रही हैं आप, ये खा रही हैं, ये खा, ये मैंने कहा तो मेरा वेट तो वैसे ही है। कहती मैं 1 महीने बाद पूछूंगी आपसे कि अभी जो आप कर रही हैं ना, ये महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना गेन किया। तो बात सही है कि आप जिस है उसका आपको समर और सजा दोनों बाद में मिलती है। हाँ मिलता है। मैंने चेक किया है, मैं जिम गई और मैंने देखा है बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करी जैसे पहले कर रही थी। नहीं करेगी इंशाल्लाह, बिल्कुल करेगी। यस, मैंने भी जिम जाने का सोचा ही था, ये मेरी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई, बहाने ये कुदरत। इंशाल्लाह ये जल्दी सही हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें, महीना हो गया वही नहीं जुड़ी और मैं अब एक अजीब लेकिन पता है दुविधा में फंस गई हूं। मदिहा, I'd say just believe in the regenerative power of your body। यार ये इन्होंने अच्छी बात कर दी है ना। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इतने जबरदस्त मैकेनिज्म के साथ पैक करके भेजा है ना कि मैं तो सीरियसली बिलीव करती हूँ कि आप देखें हड्डी टूटती है तो वहीं पे काम रिपेयर का शुरू हो जाता है। योर बॉडी इज ऑलरेडी वर्किंग। मैं भी खुद से मेरी कभी तबीयत खराब भी हो ना तो मैं कहती हूँ मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगी, मेरे अंदर इतनी पावर है तो मैं खुद से अपने आप को अंदर करने की लेकिन एक और चीज है, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ना आप इंग्रेडिएंट में कोई एक चीज कम करेंगे तो आप नहीं कुदरत से को ब्लेम कर सकते। मुझे लगता है रेस्ट कर, वो अगर रेस्ट करूंगी तो अभी तो मैं यंग हूं, मैं क्यों रेस्ट करूं? वो सब रेस्ट की भी यही बात आ जाए। मुझे होता है कि नहीं अगर मैं रेस्ट करने बैठ गई तो लो फिर तो मैं गई मेरी। तो अच्छा मुझे वैसे बताएं आपने अपना फिटनेस गोल वैसे कब सेट किए थे सब आप? अच्छा मुझे पता नहीं, मैंने तो कभी भी सेट नहीं किए, लेकिन मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ आफ्टर 45। उससे पहले तो मैं कुछ भी खाती थी, कभी परवाह नहीं की। ये मेनोपॉज में होता है ना। हाँ जी। हाँ। उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ मैंने कहा ओहो ये तो ये भी हो रहा है। और जब हाइट हो और आपका वेट बढ़े, और मेरा वेट आता था शोल्डर पर और ये पीछे गर्दन पर, और मैं कोई साड़ी बांधकर इतनी शर्मिंदा हुई फर्स्ट टाइम। मैंने साड़ी बांधी और मेरे ये जो इधर जो गोश्त था और ये जो ब्रॉड हो गए थे, मुझे इतना बुरा लगा, इतनी शर्म आई। मैंने कहा नहीं भाई अब अपने पर काम करना है। तो मैंने अपनी डाइट कंट्रोल की। मैंने कोई बहुत उस तरह की ना एक्सरसाइजेस की, ना कोई रूटीन को अपने चेंज किया। मैंने अपनी डाइट बेहतर की और उसी से मैंने कंट्रोल रखा है आज तक। अब मैं करती हूँ एक्सरसाइज। जिस एज में आपको तकलीफ देती है ना ये चीज़ें, उसी एज में करनी पड़ती हैं, क्योंकि तकलीफ के बाद ही उसका आपको फल मिलेगा। जवानी में तो सब कुछ हो जाता है, इस एज में आप कुछ भी करते हैं ना तो उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको मेंटली भी और फिजिकली भी। वो तकलीफ दे है तो मुझे लगता है उसी तकलीफ है
जो खुशी खुशी जिम जाते हैं? नहीं, मैं कभी जिम नहीं गई, मैं जिंदगी नहीं, मैं तो वॉक करने का शौक नहीं है। नहीं, मैं तो वॉक भी नहीं करती हूँ। नहीं करती। और ये जो अभी बात कर रही थी ना कि मैं बिजी, ये इतना बिजी रखती है खुद को, मैं तो इसको देखती हूँ, ये तो हर चीज इसने, इसके पास टाइम नहीं है किसी काम के लिए। मैं अपने रूम से निकलती हूँ तो इसने सब कुछ, हर पता नहीं कितनी तरह के तो स्प्रे पड़े हुए हैं, ये फर्श का है तो ये दीवारों का है, ये इसका है। अब मैं पूछ रही होती हूँ ये चम्मच इधर रख दूँ, ये मैंने ग्रीन टी बनाई है, इसको मैं इस तरह से मैं अभी ठीक कर दूंगी, मुझे क्यों शर्मिंदा करी। मैंने कहा नहीं, आप हैं ऐसी। तो ये तो बड़ा बिजी रखती हैं खुद को। अच्छा, मैं बहुत आरामदेह, चिल, मुझे ना ज़्यादा जो चीज़ें मुझे तकलीफ़ दें ना, वो भले अच्छी भी हों, मैं वो छोड़ देती हूँ। मेरे लिए अच्छा, इस एज में सबसे ज़्यादा आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका मेंटल पीस है। आपका जहन अगर पुरसुकून है ना, तो आपको हर चीज़ उसी ऐनक से नज़र आएगी। जहन आपका अगर पुरसुकून नहीं है, उसमें कोई हलचल है, उसमें कोई नेगेटिविटी है, उसमें किसी के खिलाफ आपके दिल के वो चीज़ें आपको बर्बाद कर दें। अच्छा, मैं ना, आप देखिए अभी आप भी हैं, समझिए हम भी बैठी हुई हैं, ठीक है, और साथ में मुनज़्ज़र जी भी हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वो बहुत सारी लड़कियों, उनको लगता है ना कि यार जब अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपकी प्रोग्रेस ख़त्म होगी, तो आप दोनों जो ख़वातीन हैं वो इतनी एक अच्छी एग्जांपल है हमारे सामने कि बच्चे, ठीक है, बच्चों को आपने उसमें लगाया और उसके बाद देन आपका अपना जो इर्तिका का प्रोसेस है, एंड क्योंकि एक बूम में है, दोनों ज़बरदस्त काम करें, क्योंकि समहाउ हमारे यहाँ अगेन वही ये समझा जाता है कि जी जो ज़्यादातर आगे बढ़ने का स्कोप है वो जो बिल्कुल नए लड़के लड़कियाँ जो नहीं, हाँ। और अब देखिए साथ, अगर मैं हमसाया में देखिए जी, नैना गुप्ता ने अब जैसे उनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, क्योंकि उन पे फिल्म बनी है, तो वो मतलब वो बता रहे कि एज का मसला नहीं है, अवार्ड की बात ना करें, दुख सिर्फ यंगस्टर्स के साथ ही चल रहा होता है, हम लोगों के साथ नहीं चला। लेकिन मैं तो इस चीज को भी कभी अपने दिलो दिमाग पर सवार नहीं करती। जिन नहीं, देखें, जिन प्रोजेक्ट पर अभी भी अवार्ड मिले हैं, जिन लड़की को, लड़के को, डायरेक्टर को, उसमें बेस्ट काम मेरा था, बहुत ज्यादा और बहुत अप्रिशिएट हुआ। लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि अवार्ड तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको कहा है कि कितने अवार्ड मिले। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत जबरदस्त पीटीवी के अवार्ड हैं जो ऑथेंटिक है, ठीक है, मुझे इन अवार्ड्स की इतनी जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ शोबिस को आप 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक वो जो जिनको अवार्ड के लिए रखा गया, नॉमिनेशन वहाँ होती है, एक सोशल मीडिया के लिए होते हैं, एक जो काम कर रहे होते हैं बेचारे। तो मैं, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया तो अब जाहिर है मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं सिर्फ काम क्वीन है भैया आप तो हैं, मैं सिर्फ काम कर रही होती हूँ, और मेरे नज़दीक आप बताना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन? वो नहीं, ये सिर्फ मेरे नज़दीक जो मेरी अचीवमेंट है, सबा फैसल एक नाम ऐसा है जो भी लेगा उसे अच्छा सबा फैसल। तो इस चीज़ के लिए बच्चे बच्चियां बहुत टाइम देते हैं, और हमने भी बहुत टाइम दिया, इंतज़ार किया और फिर मनवाया। तो मुझे तो अवार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास पब्लिक का इतना बड़ा अवार्ड है, रिवॉर्ड भी है और अवार्ड भी है। ये प्रोफेशनली आप एज कैसे कर रहे हैं, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें भी आपकी ग्रेस जो है, और आप रुकते तो आप कहीं पे भी नहीं है। मैं मुझे रुकना तो गलत है ना। हाँ, जहाँ रुक गए वो कहते हैं ना, रुका हुआ तो ठहरा हुआ पानी भी काई वाला रुक ही तो जाते हैं, तभी तो आगे प्रोग्रेस नहीं करते। आई थिंक दैट्स द मेन टेक अवे आज के शो का, कि कभी भी लर्निंग का प्रोसेस और आपकी सेहत की केयर का प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। और अपने जैसे अभी आपने कहा ना कि खाली दिमाग जो तो शैतान का घर है, वेरी ट्रू। अपने आप को इतना बिजी रखें। मैं घर में आई थिंक आई एम द बिजिएस्ट पर्सन, बिल्कुल तुम्हारी तरह से। विंडोज का क्लीनर अलग है, किचन के काउंटर टॉप्स का अलग है, और घर में कहीं कोई कपड़े पे दाग लगा है, कुछ है, बच्चे मुझे कॉल करते हैं या मेरे पास आते हैं, इसका क्या करना है, इसके लिए कौन सा लिक्विड यूज करना है। तो इतना वास्ट है, अब जिस एरिया को ले लें उसमें बहुत लर्निंग है।
तो सीखने के अमल को जारी रखें, अपना अपने आप से प्यार करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अपने आप से इसमें प्यार एक और चीज मैं ऐड करूंगी, वेरिएशन जरूर रखें। सेम चीज नहीं करते रहे, उसमें ब्रेक आना चाहिए। आपने 4 साल एक चीज की है, ब्रेक कर दें, आप नई चीज उठाएं। आपको अपने आप को होमवर्क देना होता है एवरी टेन्योर। इसमें चाहे घर की सेटिंग भी हो, हर चीज को चेंज कर, हर चीज को घर भी तो हर 5 साल बाद ही मदिया, मेरा तो ये तो हर साल बाद मशवरा बदलती ये है। 6 माह बाद मुझे तो फर्नीचर चेंज करना होता है। मुझे तो मैं जाऊं और हर चीज मुझे वही नजर आए। पिछली दफा एक तो मैं वो सबसे पहले जाके सेटिंग चेंज करती हूँ, वो अच्छी हो, वो पहले से बुरी हो, मुझे चेंज चाहिए होता है। और उसके बाद मैं जब ईद का डिनर होता है तो मेरी कोशिश होती है अब मैं ये सोफ़ा चेंज कर लूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे खर्च करें, आप उसको रीडू भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ज़िंदगी में चेंज इतना, मुझे लगता है उसके बगैर मैं सांस नहीं ले सकती। ट्रू। हर कैरेक्टर में भी मुझे लगता है कि आप एक ही तरह के कैरेक्टर नहीं कर सकते। अब हमारे प्रोडक्शन हाउस वाले कहते हैं जी अगर हम सोचते हैं ये गरीब है तब भी आप जहन में आ जाती हैं, हम सोचते हैं अमीर है तब भी आ जाती हैं, रूड है तब भी आप मैं क्या, इसलिए कि मैंने हर तरह के कैरेक्टर किए हैं। हाँ, वो वेरिएशंस इतनी। मुझे ये बताएं कि मैंने आप लोगों को देखा है कि आप लोग दोनों जो हैं ये मेकअप के साथ भी एंड विदाउट मेकअप भी आप लोग जो है बड़े दलेरी से अपने किरदार अदा करते हैं, जो कि हम देखते हैं कि इतना लोग नहीं करते। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी जो स्किन केयर रूटीन है इसमें आपने कब शुरू की, क्या क्या तब्दीलियाँ आई, और अब जो है वो नए आप क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, ठीक है? लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। आज का हमारा शो ये है कि आप किस तरीके से ग्रेसफुली, बिकॉज हर बंदे को एज करना है, ग्रेसफुली एज आप कैसे कर सकते हैं। और जनाब इसमें सिर्फ खवातीन नहीं आ रही, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें लग रहा होता है कि जी वो हो बस हम तो हमारा जो काम होना था, हमारा ज़िंदगी का पर्पस जो है वो सब हो चुका है। और ये तब होता है जब आपकी शादी हो चुकी होती है। बहुत सारे लोग तो अपने आप को शादी की बात छोड़ देते हैं, फिर बहुत सारे लोग अपने आप को बच्चों की बात छोड़ देते हैं, और फिर इसकी वजह से अगलों को भी लगता है कि हाँ भाई ये इनकी तो एज होगी, क्योंकि ये हर चीज़ से अपने आप को ना बस कह के हम तो बस फारिग हो गए हैं, बच्चे पैदा कर लिए, सब चीज़ें हो गई। स्किन केयर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग तो टेलीविजन पे आते हैं और लोग आप लोगों से सीखना चाहते हैं कि आप लोग कैसे ख्याल करते हैं। आपकी स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं? मुझे पहले बिफोर जैसे कहते हैं बिफोर मेनोपॉज आई हैड अ वेरी नॉर्मल बैलेंस स्किन, लेकिन अब जो मेरी स्किन सुपर ड्राई है, इतनी ज़्यादा स्किन भी चेंज हो जाएगी। हाँ, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। दैट्स माय एक्सपीरियंस। तो अब बिलीव नहीं करेंगे, तमाम ऑयल्स में सबसे हैवी ऑयल है कैस्टर ऑयल। बिल्कुल। मैं रोज़ सुबह रोज़ वाटर स्प्रे करके तकरीबन 10 ड्रॉप्स फेस के डिफरेंट हिस्सों पे, 3 ड्रॉप्स इधर 3 इधर एंड ऑल 10 ड्रॉप्स लगा के देन आई मसाज नकल्स के साथ पूरा फेस मसाज करती हूँ। और वो ऑयल कहाँ जाता है इन हाफ एन आवर किसी को नहीं पता, लेकिन स्किन जो है वो रिंकल नहीं करती है उतनी बैडली। जो है उनको मैं सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन दिस इज़ हाउ आई कीप माई स्किन नेचुरली फाइन। और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। वो जब मैं सुस्ती करती हूँ कभी, तो मेरी बेटी भी मेरे पीछे पड़ जाए, जोहा मुझे कही थी नहीं सनस्क्रीन कुछ नहीं करे, सनस्क्रीन लगा ले। बिकॉज जब हम ऑफ होते घर में 100 काम, अच्छा आज मैंने ये करना है वो करना है, तो कभी कभार मैं भूल रही होती तो वो कहती सनस्क्रीन वो लगा लें ज़रूर। तो ये जो आपने ऑयल की बात की, कल मेरे शो में सीमी राहिल आई हुई थी और वो बता रही थी कि वो रोज़ सुबह ऑलिव ऑयल की 2 चम्मच कहती मदिया मैं पीती हूँ। और मैं उनकी उंगलियाँ देख रही थी, उनकी इतने खूबसूरत हाथ हैं। तो उन्होंने कहा देखो, बल्कि मेरी फैमिली में है प्रॉब्लम है, रोमेटाइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं, और उनकी इतनी खूबसूरत उंगलियाँ। कहती मैं पीती हूँ और मैं तवातुर से पीती हूँ। इट्स वेरी गुड। सो ये ऑयल का भी इस्तेमाल जो है ना, या ऐसे आपकी चाहे वो स्किन के लिए हो चाहे वो खाने के लिए हो, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा। स्किन के लिए बहुत मेजर एक चीज़ जो है ना वो आपकी गट हेल्थ है। यस। ये जो ऑयल सबसे अच्छी
अच्छा काम करते हैं वो ये कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रखती है। आपको कॉन्स्टिपेशन किसी सूरत में नहीं होनी होना चाहिए, चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं, आप कुछ कर लें स्किन का, वो नहीं बेहतर होने वाली अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है। ज़िबा, आपकी स्किन के gut रूटीन में health क्या है? के लिए सबसे बेस्ट चीज 3 अंजीर खाएं रात में, पानी डिनर भिगो के के, 2 घंटे बाद। नो, कुछ भिगोए नहीं, डायरेक्ट उठाएं और 2 घंटे ये बाद तो खा बहुत लें। देसी खातून हाँ, है, तो देसी अगर चीजें आपने टोटके बहुत है इसके इंजीर खाई तो आपका गट कभी खराब नहीं होगा। अच्छा, तो स्किन के लिए आप क्या कर रही हैं? मैं यही खाती हूँ इंजीर, इट्स वेरी हेल्दी। गट अपना आपको बिल्कुल सही रखना बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और चेहरे पे लगाने के लिए डे क्या क्रीम, चीज़? नाइट क्रीम तो ऑफ कोर्स मैं लगाती हूँ, और सनस्क्रीन, वही सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट लिव विदाउट सनब्लॉक। और इसके अलावा वर्कआउट, रनिंग इज गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने कुछ अर्से पहले डॉक्टर्स मेरे शो में आए थे, तो मैं इनसे पूछी थी ये सनस्क्रीन और ये सनब्लॉक में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा जो सनब्लॉक है वो आपने लगाया, ठीक है, तो उसके बाद वो जो है वो जो रेजेस कर लेते हैं, ठीक है, और जो सनस्क्रीन है क्योंकि वो अंदर आपके एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो दूसरे आपके सिक्रेशंस के थ्रू निकलती है, तो उन्होंने कहा सेफर इज टू हैव अ सनब्लॉक। सनस्क्रीन जो है वो हम जितना अवॉइड करें उतना बेहतर मेरे है। ख्याल से सनस्क्रीन ज़्यादातर बीबी क्रीम्स में या उसमें जो हमें मिलता है वो भी अच्छा है, लगाना चाहिए, लेकिन हाँ ऊपर कवरेज होनी चाहिए। अगर आप 100 SPF कर लेते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके करती हूँ, तो वो बेस्ट है। एटलीस्ट 90 तो होना चाहिए, क्योंकि हमारी तो जो यहाँ पे धूप भी इतनी। आप सबा जी क्या करती हैं स्किन के रिजीम की अगर बात करूं? जैसे हम लोग हर रोज काम पर होते हैं तो क्लेंजिंग मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं क्लेंजिंग करती हूँ रात में, और वही नाइट क्रीम लगाती हूँ, और दिन में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और सन ब्लॉक लगाती हूँ। और मैं कोई बहुत ज़्यादा अपनी स्किन की केयर नहीं करती, जैसे ही बता रही थी मेनोपॉज के बाद इनकी ड्राई हो गई स्किन। नहीं, मैं जैसे पहले थी मेरी वैसी अच्छा, रही। आपकी चेंज नहीं हुई? हाँ, स्किन बिल्कुल वैसी रही, और बस बहुत ज़्यादा मैं स्किन केयर नहीं करती। अच्छा, मुझे बताएं कि जो एंटी एजिंग जो अब हमारे पास इतने प्रोसीजर्स आ गए, आप ख़वातीन उसके कितने हक में, और ये बताएं कि उसके लिए अच्छी राइट एज क्या है? क्योंकि जो अब हम देखिए कार्डेशियन उनकी बहनों को हम देखते हैं, कायली वारा को, उन्होंने इतने पहले से प्रोसीजर शुरू कर दिए कि अब एज में जब उनकी एज थी ज़्यादा यंग लगने की, तो वो उसमें ज़्यादा एज के लगने लगे। तो व्हाट इज़ द राइट एज? अच्छी चीज है लेकिन राइट एज। एंटी एजिंग यूज करने से आप बड़े तो नहीं लग सकते। नहीं, अर्ली एज में अगर आप 19-20 सालों में प्रोसीजर, अगर आप 19-20 सालों में शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ ज्यादातर हमारे यही हो रहा है कि यंग लड़कियां जब कोई प्रोसीजर करवाती हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करवाती हैं, तो मुझे बड़ा उनका ख्याल आ रहा होता है कि यार ये बहुत ज्यादती कर रही हैं अपने साथ। लेकिन जैसे हमारी बढ़ती हुई एज, मुझे तो मेरे ख्याल में मैं पहली खातून थी जिसने स्क्रीन पर बैठकर बता दिया था कि हाँ मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को मैं कभी नहीं कोशिश की कि मैं 20 साल की लगूं। नहीं भाई, जो मेरी एज है ना उसके मुताबिक मेरी स्किन और दिलकश लगेगी, इसीलिए तो प्रोसीजर्स हैं। जिंदगी में सुबह उठ के कोई मोटिवेशन अगर है ना मेरे लिए, तो मैं सुबह उठ के जब मुंह धोकर शीशा देखती हूँ ना, वो मेरा पूरा दिन बेस्ट रहता है। जब मुझे लगता है कोई हल्के नहीं है, मेरा स्किन फ्रेश है, शाइन कर रही है, तो मुझे सारा दिन के लिए मेरी बस समझे एनर्जी आ जाती है। तो मैं बिल्कुल डॉक्टर के पास जाती हूँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके लिए कोलेजन तो हमारे बॉडी में ख़त्म होता है ना। लेकिन देखिए सबा जी, उसके लिए भी तो एक एज है ना। अगर आप बहुत चीज़ें जल्दी शुरू कर देंगे तो आप कौन सी एज में एडवाइस करेंगे कि इस एज के बाद? आफ्टर 40 हल्का हल्का। और मैं बहुत माइनर ट्रीटमेंट करवाती हूँ, जिससे देखिए हमारा काम एक्सप्रेशन का काम है। और मेरे तो आप लोग बताएं, कभी एक्सप्रेशन में कमी आई, कभी नहीं आई, इसलिए कि मैं बहुत उतना करती हूँ जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक और जो ट्रेंड बनना शुरू हो गया है वो ये कि बच्चियाँ किसी भी अपने फेशियल फीचर को ना अपने लिए कमजोरी महसूस करती है। लाइक मेरा नाक मोटा है, मैं नाक पर नोज जॉब करा लूं, मेरे लिप्स पर, अच्छा और नहीं तो फ्रेंड्स कहती हैं हाय तुम ऐसे करो ना, लिप थोड़े से प्लम्प करा लो। Since I was 20, I'm so sorry I'm cutting you.
20 साल की उम्र से मुझे ये बोलना शुरू कर दिया गया था अपनी नाक की नोज जॉब करा लो, नोज जॉब करा लो, नोज ये करा लो, यूं करा लो, यूं करा लो। मैंने कहा क्यों करा लो, आई लव माई फेस भाई, नहीं चेंज करना मुझे, आई एम ओके विद इट। जॉ लाइन होनी चाहिए, ये होना चाहिए। सबसे जो मुझे अब सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो होंठों को करवा लेती है ना, गलत है वो इतना बुरा लगता है, इतना वो लिपस्टिक लगाते हुए तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन देखने वालों को अच्छा नहीं लगता, और स्क्रीन पर बहुत बुरा लगता है। ये वैसे मुझे ये बताएं, ये मैंने और वो स्क्रीन पे पता देखा चल है। जाता है, बच्चों को भी अब पता चलता है इन्होंने होंठों को क्या करवाया हुआ है, ये क्यों कराया भाई, क्यों? पहले कितने होते थे पंखड़ी जैसे होंठ। अच्छा ये आपने जो बात की ना, मुझे इससे याद आया, बारीक हमारी कहते हैं बारीक है, तो ये तो इसको तो पता ही नहीं है। सवा जी हमारी फैमिली में, अम्मी की फैमिली में तो हमारे मोटे होंठ है ना, तो मुझे याद है जब मैं नई नई आई थी तो वो लोग कहते थे लोग, और तुम पैरोडी करने के लिए ना, नहीं पैरोडी करने के लिए कह रहे वो जो मोटे होंठ वाली, मोटे होंठ वाली। सो अच्छा बाकी सारे, हमने भी अम्मी से सुना था कि अम्मी की जवानी में मैं कहती वो इतनी वो सायरा बानो की खूबसूरती से बारीक से पंखड़ी से होंठ से आपने कहा, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स हमारे होंठ मोटे, फिर उसके बाद जब फैशन आना शुरू किया मैंने कहा ओ वाह, तो बिल्कुल सही ये टाइम आया हमारा, तो हम बड़े उसमें खुश हो गए। तो लेकिन बाकी भाई ये मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा है कि अब लेकिन कुछ लोग इतने होंठ मोटे करा लेते हैं, उससे भी होता है कि मैंने देखा कि उससे रिंकल जल्दी आ जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने कहा है कि एक लिमिट के अंदर आप किसी अच्छे बंदे के पास जाएं जो आपके अच्छे प्रोसीजर्स करें, क्योंकि जब आपके फिलर्स बहुत, अगर आप टू मच करा लें तो ये डिजॉल्व तो होते नहीं है, नहीं, ये माइग्रेट हो जाते फ्रीज हो हैं, जाता है सब आपका, ये माइग्रेट करते हैं, आपका चेहरा जो है वो बड़ा हो जाता है। मिसेस खालिद कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस खालिद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं आपको सबसे तजर्बा बताती हूँ, चेहरे का तजर्बा बताती हूँ। जी जी। मेरा चेहरा बहुत ब्लैक था, छाइयाँ थी, मैंने इतने इलाज कराए, 3-4 साल, कोई आराम नहीं आया। इस वजह से जाते हैं वो मुकम्मल दवाई देते हैं, वो अपनी करते हैं, वो मुझे पता है मुकम्मल दवाई देते हैं स्किन स्पेशलिस्ट, कहते हैं उनके मरीज बने रहे। उसके बाद मेरा चेहरा इतना खराब था, काला छाइयाँ, नाक काला। फिर मैंने अल्लाह के नाम चूज किए, या नूरू, या जमीलू, या खालिकू, या बारियू, या मुसव्विर, या अल्लाह। जब मैंने पढ़े शुरू किया, यकीन करें आस्ता 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 सुबह शाम पढ़ के मुंह पे फूकती थी मैं हाथों पे दम करके, मेरा चेहरा से साफ हो गया। और अब माशाल्लाह मेरा जो चेहरा क्लियर है, हल्की सी शानी है, लेकिन मैं सबको कहूँगी अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है। बेशक या मुसव्विर हो। और इतना अच्छा मेरा मशा, वो सब लोग कहते थे जैसा मुंह है काला दिल वैसा मुंह काला हो गया। मैं ये बातें भी सुनी है, जब शुक्र अल्लाह का जब मेरा ना ये है, ये अल्लाह के, मैंने अल्लाह के नाम खुद चूज किया, अल्लाह के नामों से जुबानी याद है, तो मैंने उन्हीं में से मैंने फिर नाम चूज किया, अल्लाह के जो मुसव्विर खूबसूरत बनाने वाला, जो खूबसूरत इस अदा के ना, मैंने तो फिर मैंने खुद नाम ट्रक करके तो मुँह पे लगाने शुरू कर दी। तो अल्लाह मिर्ची कितनी अच्छी हो गई, काफी मेरा बहुत पता चला, साफ हो गया, और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपने मैं बहुत ऐड करना चाहती हूँ चीज़, एक्चुअली दिस इज माय रिचुअल। मैं भी वजू करते हुए या मुंह धोते हुए या मुसव्विर पढ़ती हूँ हमेशा। सो मैं समझती हूँ कि मेरी स्किन का या मेरे चेहरे का एक्चुअल राज यही है। और एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी मैं थोड़ा टाइम लूँगी। अगर आप 2 मिनट के लिए सिर्फ ये चीज़ महसूस कर लेना कि आपको अल्लाह ने बनाया, बिल्कुल, तो वहाँ पर आपको जो है वो चीज़ तारी होगी, एंड अब आपको बुरा लगने लगेगा कि आप अपने चेहरे में कोई नुक्स निकाल, क्रिएटर कौन है आप ये तो देखें। अल्लाह में नुक्स निकाल रहे हैं। तो ये जो भी कुछ है, ये तो वैसे ही हमारे कुरान में कह दिया गया है कि आप लोगों की जानवरों की तरह सूरतें हो जाएंगी। तो कभी टच नहीं करना चाहिए चेहरे को, अब कभी भी ये नहीं। जो अभी तुमने बात की ना, एग्जैक्टली ये मेरे चचा थे, व्हेन आई वाज लाइक इन माय टीनेज, तो जब आते कहते तुम्हारी नाक पकौड़े जैसी, तुम्हारी नाक ऐसी, और मैं ना एक दिन कहते हो थोड़ी सी टेढ़ी भी है, और एक दिन मैं लिटरली शीशे के ऊपर ना कंपास रख के, तो मेरे दादा ने देख लिया तो वो हंसने लगे, कहने लगे तुम्हें किसने क्या मसला है तुम्हारे? मैंने कहा मेरी नाक मोटी और टेढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ ने एक ही नाक बनाई थी और वो तुम्हारे मुंह के लिए बनाई थी, खत्म अल्लाह। उसके बाद तो मैंने कभी क्रिप नहीं किया कि मेरी नाक कैसी है। मैंने कहा ओके, थैंक गॉड आई हैव दिस। यू शुड लव ऑल योर फीचर्स। मैं एक बात हमेशा मैंने अपने साथ की, उसके बाद मैं जो भी सामने वाला हो वो
कोई मैं देखती हूँ ना सेट पर जाती हूँ तो लड़कियाँ बैठी हुई हैं शीशे के आगे, कभी ये कर रही हैं, कभी ये कर रही हैं, कभी, और मैं पीछे, मैं मेकअप करके जाती हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ सबको कि क्या क्या कर रही हैं। अब वो इतनी टेंशन में, चश्मा उतारेंगी तब जब मेकअप करना होगा। 2-3 दिन मैं देखती रहूँगी, फिर चौथे दिन मैं कहा तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी लग रही है, क्या किया तुमने? क्या वाकई क्या? मैंने थोड़ी सी नींद अच्छी ली है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी है। तो आपको कहने से भी बड़ा फर्क, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, लेकिन मैं कह दूं तो उससे। और दूसरी बात ये, मेरी अम्मी कहा करती थी कि आपको आपकी फेस का या बॉडी का, फेस का स्पेशली कोई पार्ट अगर लग रहा है ना कि ये भद्दा है या ये इतना अच्छा नहीं है, उसको हाईलाइट करो। जब उसको हाईलाइट करोगे ना तो वो चीज़ दब जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे मेरा फोरहेड हमेशा से बहुत बड़ा है, और ये आपको लग रहा है, ये आपने कहा है तो मुझे तो तभी भी बड़ा नहीं लग तो रहा है। मैं हमेशा मम्मी से ये कहा करती थी, तो मेरी अम्मी कहती थी कि रोशन पेशानी है, जिनके माथे बड़े होते हैं ना, वो रोशन पेशानी की निशानी है। जब मम्मी ने ये कहा, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी मुबारक चीज़ है, इसको हाईलाइट करो। अब मैं बाल खींच के बनाऊँ, मैं बाल टाइट बनाऊं, खोल लूं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में आप सबको ना ये चीज़, आपकी नोज़ बड़ी है ना, आपको लग रहा है कि नोज़ मेरी मोटी है, तो आप नोज़ पिन को इतनी खूबसूरत पहन लें कि आपकी नज़र सबकी आपकी नोज़ पिन पर जाएगी और आपकी नोज़ सबको अच्छी लगेगी। तो आपकी जो फेस का पार्ट आपको फील हो रहा है ना, उसको आप हाईलाइट करें और कॉन्फिडेंस से करें। कॉन्फिडेंस इज द कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, समरीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है समरीन? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई है आप सबसे बात करके। मेरे सामने मैंने एलसीडी चलाई हुई है, आप सबको देख रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं असल में स्किन के बारे में बात करना चाह रही थी। सप्लीमेंट्स तो मैं पहले ना लेती रही थी। मेरी ना उम्र एज है 52। अच्छा माशाल्लाह। 52 एज के हिसाब से ना, जैसे स्किन एक टाइट हो रही होती है ना, तो ऐसे होने नहीं चाहिए। तो मैं अक्सर ना ये सब फैसल साहब का इन सबको देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सप्लीमेंट्स तो लिए, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ उनसे ना कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैं अच्छा ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी मुझे वो बता सकते हैं कि कौन सी ब्रांड्स है, कौन सी अच्छी सप्लीमेंट्स हैं जो एक इस एज में लेनी चाहिए ना, वो जरूर मुझे आप प्लीज बता दें। अच्छा, अब ब्रांड के हम नाम लेंगे तो ब्रांड की प्रमोशन हो जाएगी, फंसा दिया आपने में समरीन जी। वैसे सप्लीमेंट्स तो ज़्यादातर आपकी डाइट को बैलेंस करने के लिए, और वो तो आप शॉप पर जाएंगे तो आपको इतनी चीजें और उसके इंग्रेडिएंट्स देखकर कोलेजन जो है फाइनल करना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट्स वो इनकी डॉक्टर ही बता सकती हैं। और डेफिशिएंसी किस चीज की है पहले वो आप टेस्ट करवाएं, फिर वो चीज। और कोलेजन बूस्टर जो है ना चीजें, अगर उस सबसे खजूर तो आप जरूर खाया करें। खजूर इतनी बेस्ट कोलेजन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये आप ऐड करें, बाकी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और देखिए सिर्फ सप्लीमेंट से मुझे लगता है सिर्फ खाने से काम नहीं होगा, पाए में भी बहुत होता है। हाँ, पाए का शोरबा, पाए में मैं भी यही कहने लगी थी, पाए का को शोरबा मस्ट करें एवरीडे बेसिस पे। और साथ में कुछ लगाना भी है है कि इनकी क्या कंडीशन है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, ये बहुत सारी कंडीशंस देखने की होती हैं। ऑल्सो सिर्फ खाने से नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे लगाने का भी ऐसा नहीं हो सकता। हम बहुत सारी ऐसी खवातीन को देखते हैं जो कहती हैं कि जब आप उनको देखिए कहती हैं यार इनका तो एजिंग प्रोसेस रुक गया हुआ है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से केयर करती हैं, वो फ्राइड चीजें नहीं खाते। मैं अगर मेरे लिए, आई एम सॉरी खवातीन अगर मैं आपका नाम न लूँ, मैं एक बहुत ही हमारे जबरदस्त सिंगर अदाकार में उनका नाम लूंगी कि अगर मैं कहूँ कि जी अगर एज आपने ग्रेसफुली कैसे करा तो डैट इज शहजाद रॉय। यस, आई मीन शहजाद रॉय साहब, मैं कहती हूँ वो अगर कोई क्रीमें बना के बेचने लग जाए या वो कॉलेज की गोलियां भी निकाल लें, वो इतने बिकेंगे क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं। So वो एक बड़ा अच्छा। फिर शहजाद रॉय, देन वी हैव सजाद अली साहब। यस, सजाद अली साहब की भी अगर हम स्किन वगैरह देखें बात करें और तो ताकि कुछ समझ में तो आए। देखिए ना, औरतों के इसलिए वो तुम करें क्योंकि वो देखिए जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो औरतों को तो बिल्कुल एग्जैक्टली आदमियों के लिए एज करना थोड़ा सा लेस Women go through hormonal imbalance, they have only 2 hormones, so हमारे पास जो तीसरा हार्मोन है ना वही तो क्रिटिकल है। जब पहले मैंने मर्दों की बात नहीं की तो उन्होंने कहा मर्दों की बात क्यों नहीं करी, मैंने मर्दों की बात की उन्होंने कहा औरतों की बात करी। ये अल्लाह ये औरतों। अच्छा, ऐसे भी होते हैं मर्द। हमारी फैमिली में ही 2-3 बच्चे ऐसे हैं, उनके बच्चे हुए, अब उनके बच्चा उठाया और अपना भी पेट बढ़ा। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? कहते हैं ये बस इसके बाद। मैंने कहा तुम्हारा क्या काम है
लेना देना इससे। तुम्हारी बेगम का काम है, तुम्हारा क्या काम है? कहते बस अब मेरा बच्चे भी हो है। गए। मैं कहा नहीं भाई, ये जो सोच है ना, इसको उसको हम इतना तंग करते हैं अपने कि आप वो में। अब हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, एक तो जो जैसे हमें लोग एज शेमिंग करते हैं कि जी फलाना कलर आपने क्यों पहना, तो क्या आपने अपने अंदर कोई ऐसी चीज Seriously? थी? ये हाँ, ये मुझे बताएं कि आपने अपने अंदर कोई ये लोग करते हैं कि एक स्पेसिफिक एज के बाद के रेड कपड़े क्यों पहन लिए, पता नहीं फलाना क्यों कर लिया, ये मतलब मैं भी सुन रही होती हूँ कि है मुझे तो आज तक ये चीज ही नहीं समझ आई कि एज से कलर्स का क्या कि ताल्लुक रेड है। लिपस्टिक क्यों लगा ली है। तो मुझे बताएं कि आपने ऐसी कोई चीज सुनी और आपने फाइट उससे कैसे किया, ये बताएं फाइट कैसे किया नहीं, उससे? फाइट क्या करना है, जस्ट इग्नोर। मेरी जिंदगी मैं डिसाइड कर रही हूँ ना, हु द हेल इज समवन एल्स। और आई थिंक हम चूंकि शोबिस में होते हैं, मेरा दिल कर रहा है, मैं पहन रही हूँ। हाँ, खैर, कलर्स टॉक टू मी, कलर्स अट्रैक्ट मी। मुझे अगर एक दिन लग रहा है कि आज मैंने ग्रीन पहनना है, आज मैंने येलो पहनना है, तो मैंने पहनना है। हाँ, ये जरा देख लेना चाहिए कि अपने कलर कम्प्लेक्शन के हिसाब से आप कलर सिलेक्शन करें। आपका उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, एप्स हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ये मेरी स्किन टोन है, वार्म है, कूल है, अंडरटोन क्या है स्किन की, उसके हिसाब से कलर सेलेक्ट करें। एज फार एज यू लुकिंग गुड इन द कलर, आई डैम केयर कि कोई क्या कह रहा है। हमें तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, आई डोंट केयर रियली। सवा जी आप किसी मैं तो बड़ा सुनती हूँ बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। Seriously? तो बुढ़ी घोड़ी तो सब करती है भाई। लेकिन पहले मैं लाइट कलर बहुत पहन लिया करती थी, अब मैं थोड़ा सा, मुझे डीप कलर पसंद है। लेकिन कभी कभी जैसे ये अब मैंने लाइट पहना हुआ है, मेरा तो जो मूड होता है मैं वो पहनती हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं, और हर कलर पहनती हूँ मैं, और मैं तो इंजॉय करती हूँ भाई। और मैं बिल्कुल भी बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम नहीं हूँ। मैं जो मतलब लोगों का यही होता है कि हाँ कि लाल कलर भी। अरे भाई ये क्यों लाल पहना हुआ है। अच्छा क्या एज का हमने क्या बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी आपके एक फलानी एज के बाद जब कहते हैं हल्के इंसान रंगों पे आ जाए, क्योंकि हमारे क्यों आगे नहीं? बुजुर्गों ने हमें बताया हुआ है कि जी Exactly. ब्राइट कलर जो है वो आप नहीं पहन सकते। टैबू है, मना कर देते हैं। मैं अभी इस वक्त अपनी रिलेटिव का नाम नहीं लूंगी, मैंने बर्थडे पे उनको गिफ्ट किया तो कहने लगी कि हाँ ये बहुत ब्राइट रंग है ना, मेरे ससुराल वाले एतराज़ करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, ये मैं ऐसे ला लेती हूँ, मैं आपको नया जोड़ा, फिर मैंने लाइटर कलर में भिजवाया। ये तो हमारे जो हमसाया मुल्क की उनकी हैं ये चीजें कि वैसे ये हाँ, पहनना है, सफेद दुपट्टे, ये नहीं बिल्कुल जी, पहनना, हाँ जी, सफेद yes, दुपट्टे। true. ये हमारे मुल्क में भी पूरा ये हमारे है यहाँ कल्चर। लड़कियों को सिखा दिया गया है। मैंने तो 20 एज ग्रुप में देखा है, लड़कियां रिस्ट्रिक्टेड होती हैं 18 साल 16 साल की, ये कलर्स पहनने, पेस्टल अच्छे लगते हैं, नहीं लाउड नहीं पहन सकते, नहीं ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकते। मैंने तो औरतों से ज्यादा लड़कियां देखी हैं अपने खानदानों में, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये इनको रिस्ट्रिक्ट किसने कर दिया। बाय द वे आई डोंट बिलीव इट कि आप पे कोई कलर अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करती। आपको हर रंग पहनना चाहिए, चाहे आप काले चाहे आप गोरे हैं। कैसे डिसाइड करें आपके मौसम के हिसाब से बस पहने। मौसम ऑब्वियसली देखिए, वो तो आपका एम्बियंस, आपकी सराउंडिंग हुई ना कि आपने उसमें एडजस्ट होना, वो एक वो सेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको हर कलर एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि उस कलर की, हर कलर की अपनी वाइब्रेशन है। तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर रहे हैं यार। अच्छा तो आप अपनी जिंदगी के साथ जिस भी आपकी जो करंटली इस वक्त जो एज है ना, ये आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत एज है, क्योंकि इस वक्त जो आपकी मेंटल कंडीशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका और किसी एज में नहीं था। तो मैं अब अपनी ये गेस्ट से भी जानना चाहूंगी कि इन्होंने अपनी कौन सी ऐसी आदत, अगर ये पीछे मुड़ के देखें तो उनको लगता है कि ये चीज आदत नहीं होनी चाहिए थी, तो वो आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपने तर्क कर दी है? मैं बहुत सेंसिटिव थी। मैं अपनी फैमिली को लेकर, घर को लेकर बहुत सेंसिटिव थी। माइनर सी अगर कोई बात हो जाती थी ना, वो मैं अगर उस वक्त नहीं भी कोई जवाब देती थी तो दिल के अंदर तकलीफ रहती थी। ये मैं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें तर्क करनी है, क्योंकि जो हमारी बहुत सी आदत है हमें बहुत जल्दी हमें एज करवा देती हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, ब्रेक में इतनी बातें कर ली है क्या बात कर रहे कि जैसे बहुत सी चीजें ना कि जो चीजें बॉदर कर रही थी, अपनी कौन सी जो आदतें हैं फिर आपने इनको छोड़ी। ये सवाल था मेरा कि ऐसी कौन कौन सी आदतें, फिर आपने बताया था कि आप किसी चीज पे डिस्टर्ब हुई थी।
घर में? हाँ, मतलब हर चीज़ को ना दिल में और दिल पर जगह ना दें, ये मैंने सीखा बहुत अरसे बाद। और जब मैंने वो सीखा तो मैंने वो चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी। मुझे उस चीज़ ने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, और उस चीज़ को मैंने छोड़ा जो आपको इतनी सी बात भी ना दिल को लग जाती है। वो मेरे ख्याल में सब, और इन सब के लिए ना बेहतरीन, हम जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे, जैसे मैं अगर फजर में उठ ना सकूं और मैं जब उठती हूँ तो फिर मेरा दिल घबराता है, मुझे सब बुरा लग रहा होता है कि एक कनेक्शन जो सुबह था ना वो मिस हो गया। तो वो चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो मैंने अब ज़िंदगी से वो जो डिस्टर्ब करती थी चीज़ें वो सब निकाल दी, और मैं बड़ी रिलैक्स हो गई। और आपकी इर्द गिर्द की एनर्जी, ऑफ कोर्स वो बहुत मैटर करती है कि आपके इर्द गिर्द की एनर्जी कैसी है। कभी कभी कहते हैं ना, आपके आसपास के जो लोग, आपके घर के सर्कमस्टांसेस, आपके ससुराल वाले, अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, आपको बहुत जल्दी बुरा कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हम वैसे कभी कभी ऐश्वर्या राय को देख हम कहते हैं, यार दुनिया की सबसे कैसे सोचती हूँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत और हमें लेकिन नहीं पता कि घर के माहौल क्या उसको इफेक्ट किया है, तो फिर हम कौन है? हाँ, तो ये बड़ा सुने, ये बातें सुन के उनके घर में लड़ाई ना शुरू नहीं होनी चाहिए लड़ाई। हाँ, सच को फेस करना चाहिए। हाँ, ये बात वैसे है कि आपके घर के आसपास के लोग, अब फिर आपको बाउंड्री सेट करना भी अपने मेंटल पीस के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपने अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम कौन सी ऐसी आदत जो आपने तर्क कर दी? एक तो मैंने अपने आप को पनिश करना छोड़ा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप गलतियां होती हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, और फिर उसमें आप एक गिल्ट में चले जाते हैं कि ओह ये ऐसा क्यों हुआ, कितना बुरा मोमेंट था, मैंने क्यों किसी को ट्रस्ट किया, मैंने क्यों किसी के साथ इतनी जेनरोसिटी की, उसने तो यूं बदतमीज़ी की, फला फला। तो ये इस तरह करके ना आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा एक जंक जो है ना, एक कूड़ेदान बन जाता है जिसके अंदर वो सारा नेगेटिव लगेज जमा हुआ होता है। तो एक तो एक कमिंग टू टर्म्स विद योर पास्ट, जो भी हुआ वो आपका लर्निंग प्रोसेस था, आपने उससे सीखा, अब उसको बंद करके साइड पे कर दिया। कहीं कहीं खुद को माफ कर देना भी बहुत मैं ये अब इज कमिंग टू दिस कि अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी। फॉरगेट एंड फॉरगिव, बस दो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, और मैं अपने आप को कहती हूँ कि अच्छा किया बुरा, सेट असाइड। और अब नेचुरली मुझे पता है बहुत सारी बदतमीजियाँ और को बुरा बिहेव करता है, कुछ होता है, वो मेरे दिमाग से डिलीट हो जाता है। मुझे आई जस्ट माई ब्रेन रिटेन्स जो अच्छा एक्सपीरियंस है, और बुरे वाला ऑटोमेटिकली वो कहीं दब जाता है। यानी कि आपने अपने ब्रेन को जस्ट अपने तरीके से प्रोसेस करना सिखा दिया है। सीखा है। हाँ, कि बस नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब ही नहीं करना। अपने पास्ट के साथ, अपने माजी के साथ उसको एक्सेप्टेंस के साथ कबूल कर लें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को पनिश करते रहते हैं कि ये गलती मैंने की, उसके साथ मैंने ऐसा अच्छा क्यों किया, उसने तो मेरे साथ ये किया, तो तब तक आपके दिल में रंजिश और नेगेटिव इमोशंस उबलते रहते हैं, और वो आपको ना स्किन अच्छी होगी, ना बॉडी अच्छी होगी, आपके ऑरा में भी एक नेगेटिविटी ना वो चलती रहती है। तो जाने दें, वो टाइम था, वो एक ईरा था, गुजर गया, मूव ऑन। अच्छा, मुझे तो मेरा माजी याद भी नहीं रहता। मेरी बहनें बात कर रही होंगी, वो फलां थी ना फ्रेंड, वो मुझे मिली, और छोटी बहन के अभी वो शिफ्ट हुई तो उसकी पता नहीं 5-6 कॉलेज की फ्रेंड्स आई हुई थी खाना उसके घर। तो मुझे कहती, बाजी आपकी भी फलां, मैं कहा मुझे नहीं याद। कितनी है जो मुझे फ़ोन करती हैं कि आपके साथ थी, मैं मजाल है मुझे कोई याद हो। मेरा दिमाग तो इतनी जल्दी डिलीट करता है चीज़ों को कि माजी तो मुझे, बच्चों की बचपन की चीज़ें मुझे इतनी याद नहीं है, यकीन जाने मुझे नहीं याद। मैं सिर्फ और सिर्फ ना ये जो टाइम है ना, इसमें जीना सीखना चाहती हूँ। मुझे कभी ये भी फिक्र नहीं हुई मुस्तकबिल की। वही बात मैंने एक आपसे कही है, उसी को मैंने अपना पल्ले बांध लिया है कि मेरे बच्चों, आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे होते हैं, उससे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। मेरे बच्चों को मैं सेहतमंद अच्छी लगूंगी, मेरे बच्चों पर अगर मैं फाइनेंशियली बोझ नहीं डालूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे ये चीज़ें मुस्तकबिल के लिए चाहिए। माजी मुझे याद ही नहीं है, और हाल मैं अपना जो है ना बेस्ट जीना चाहती हूँ, और अपनी तरफ से जी रही हूँ, लेकिन बस मुझे अपने हाल से मतलब है। बाकी
मुझे तभी पुरानी बातें याद ही नहीं होती। आप एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, आप नए इनिशिएटिव्स ले रही हैं। सो जैसे उन्होंने कहा ना कि ये सीख रही हैं, ये सर्टिफाइड जो है वो होम शेफ हैं, आपने अपनी नहीं भाई, मैंने सब सीखा और मैंने इतना किया है, मैंने इतने खाने बनाए हैं, मैंने इतने घर चेंज किए हैं, बनाए हैं। अब मुझे वो सारी ख्वाहिशें जो है ना मैं कर चुकी, वो अब मेरी ख्वाहिश नहीं है। दिल होगा तो कर लूँगी, दिल नहीं होगा तो नहीं करूँगी। ये जो मोमेंट है ना, इस आज के दिन में ये मोमेंट, कल मुझे बैंक जाना था, पूरा दिन बैंक का टाइम था, सिर्फ मुझे कल के दिन में वो था कि बस मुझे बैंक जाना है और वो बड़ा अहम काम करना है। गोल सेट बहुत डिटेल में समझना है सब कुछ कि बैंक कैसे होगा सारा कुछ। शी इज अ वेरी गुड लर्नर। अच्छा, मैंने कहा लर्निंग के प्रोसेस जब तक आप लर्न कर रहे हैं, आपको बताती हूँ, ये मेरे साथ थी। मैंने कहा ज़ेबा अब अकाउंट खुलवाना था, अब आजकल तो आप पैसे भी डालें फिर उसकी शराइत भी इतनी बाहर मुझे कहती है समझना सब कुछ, तो मैं कुछ नहीं समझूंगी। कहती है मैं अपने लिए, मैंने तो अपना नहीं किया, तो मैं जा रही हूँ, मैं बैठी रहूंगी। मैंने कहा करना तो आपने ही है, अब आप ही करेंगे, आप समझेंगी, कुछ भी नया देख लें। सीखना और मुश्किल सब नहीं समझा, सब समझा, सब करवाया और रात तक करवाए। आजकल कुछ भी नया सीखना मुश्किल नहीं है, थैंक्स टू चैट जीपीटी। मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं पूछती हूँ, बिकॉज वो तो इतने नखरे से बताएंगे, ओ मामा यू डोंट इवन नो दैट। पहले अब बच्चे जज भी करते हैं। हाँ बच्चे जज करते हैं। आई गो टू चैट जीपीटी, मैं उससे हर मसला, इवन अगर मैंने रख दिए क्रेम ब्रूले इन द अवन और फिर मुझे याद ओ इसको कितनी देर रखना था, तो बजाय इसके कि मैं डायरी में जाऊँ, फटाफट चैट जीपीटी से पूछिए हाउ लॉन्ग शुड इट बी, इट शुड स्टे इन द अवन, तो फौरन बता दे इतने मिनट। तो इतनी लाइफ इजी है। ऑल लेडीज, ऑल जेंटलमैन, मत आप सहारे ढूंढे, आपके पास इतनी सारी एप्स और इतना नॉलेज फ्री मिल रहा है आपको, तो बी कॉन्फिडेंट, अपना लर्निंग का सिलसिला जारी रखें और कोई नई ज़बान सीखे। बाय द वे मैं आजकल स्पेनिश पे काम कर रही हूँ, मेरी बेटी जर्मन सीख रही है और बड़ा मजा आता है। हम दोनों ड्यूलिंगो के ऊपर ना अपना जर्नी जारी रखते हैं। मैं उसको जेम्स भेजती हूँ, मुझे मतलब एक लर्निंग प्रोसेस है। माय डॉटर इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन दिस वे। तो हम लोग आप सिंधी तो आप खैर यहाँ पे जो अभी देखने वाले हैं, आप बलोची सीखें, पश्तो सीखें, कोई ज़बान। वैसे मैं किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज से पहले मैं सिंधी ज़रूर सीखना चाहूँगी आसपास, क्योंकि मैं हम रहते कराची में, बिकॉज आई वांट कि मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है अक्सर जगहों पे अगर आप सिंधी बोल रहे हैं आपका काम जल्दी हो जाता है, सो आई वुड वांट टू लर्न सिंधी। और एक्चुअली और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर एक पंजाबी बंदा जो है, क्योंकि इतनी मीठी लैंग्वेज है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर एक पंजाबी शख्स अगर सिंधी बोलेगा तो कितना खूबसूरत मैसेज आएगा अक्रॉस द बोर्ड। कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने आई वुड लव टू, यू आर मेकिंग मी फील बैड बिकॉज़ मैं सिंधी हूँ और मुझे सिंधी सही से आती नहीं। फैमिली वुड से कि तुम क्यों नहीं सीख रही हो? क्योंकि देखिए मेरी पंजाबी अब अच्छी हुई, हमारे घर में सबसे ज्यादा मेरी माँ बाप का फोकस है उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए। उर्दू तक मैंने पंजाबी कराची में आके बोलना शुरू की क्योंकि मैंने मिस की, बट नाउ आई वुड वांट टू लर्न सिंधी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार क्या कितना खूबसूरत मैसेज आएगा कि एक पंजाबी बंदा एक सिंधी बोल रहा है और आपको वैसे हाँ दैट्स ट्रू, लैंग्वेज की ज़बान है। अच्छा, और दूसरी ये आपके अपने मेंटल हेल्थ के लिए जो मैं बहुत देखती हूँ खवातीन में स्पेशली, कहीं भी जाएंगी किसी से भी मिलेंगी, ओहो ये तो बहुत कॉमन है ना, हाँ क्या हाल है, कितनी अच्छी लग रही, क्यों इतना वेट बढ़ा लिया है, एग्जैक्टली, अल्लाह कितनी प्यारी लग रही, ये पिंपल क्यों नहीं, तुम्हारी कितनी प्यारी स्किन होती थी, ये अब क्या हो गया, अल्लाह यार तुम्हारे माथे पर लाइंस आ रही हैं, डॉक्टर के पास जाओ, इतना पैसा है तुम्हारे, मतलब उनका बात यहाँ से स्टार्ट होती है, यही चीजें होती हैं। उनको ना ऐसे प्यार से पकड़ के घर के दरवाजे तक लेके जाके कि अच्छा अल्लाह हाफिज़। नहीं तो आप मार्केट में, आप मॉल में किसी से मिल लें तो आपका उनका सवाल ही ये होगा, शुरू यहाँ से होता है। फिर आप किसी के घर जा रहे हैं, आप गए मेहमान बनकर, आप सोफे पर बैठे, यार अगर वो तुमने अगर वाज उधर रखा हो ना, वो देखो उसके साथ मैचिंग हो रही है, और अच्छा शैंडियर बहुत प्यारा, कहाँ से लिया है, अगर तुम ड्राइंग रूम वाला इधर लगाओ और ये वाला उधर लगाओ तो कितना अच्छा लगेगा। ये मैं स्पेशल लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि इस चीज को छोड़ दें। हर किसी ने अपने हिसाब से, मैं अपनी बेटी के घर जाती हूँ, कहती अम्मा आपने कभी मशवरा नहीं दिया, मैंने कहा तुमने अपने हिसाब से बेस्ट घर बनाया हुआ है, मैं तुम्हें कभी मशवरा, मैं कहीं चली जाऊँ मैं कहती हूँ गंद हो, सफाई हो,
मुझे जो टाइम उधर बैठना है मैं वो बैठ कर, मैं कभी किसी को वैसे नहीं मैं करती इंशाल्लाह इसी वीक criticize। और नेक्स्ट वीक हम एक शो भी आपके लिए कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि जब आप किसी के घर मेहमान बन के जाएं तो आपके आदाब क्या होने चाहिए, ये हम आगे शो भी करें, तो आप वो मिस ना कीजिएगा। और इसमें जो डिस्कशन है we don't have क्योंकि basic ये- etiquettes। अच्छा खुद भी जो बुला रहे हैं, और इसमें ये कम्युनिकेशन में पहले आ जाता है कि आपको इस चीज़ से कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी। अगर आपके घर के Yes। मेहमान आए हो, हर बंदे की अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, Yes। ठीक है, और जिन लीडरों के लिए आप अपने रिश्तेदार छोड़ देते हैं, कल कला आपको अगर कुछ हो भी जाए वो लीडर कभी आएंगे भी नहीं, तो अपने रिश्तेदार जो है ना, मेरी उनसे- एक खाला, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत में जगह इलाही दे, वो आमीन। आती थी घर, वो कहीं भी जाते, वो बड़ी नफीस खातून थी, नफीस, ये गुल अहमद के सूट के अलावा उन्होंने कुछ नहीं पहनना होता था। फिर उन अब डिनर हो रहा है, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं घर पर, अब वो आए में है और रोटियां तनूर में लगा के दे रहे हैं, नान लग रहे हैं, सब कुछ। ये तो मैं नहीं खाऊंगी, घर की रोटी चाहिए। उनके लिए घर की रोटी, घर वाले कितने बिजी हैं, उन्होंने किचन में जाके उनके लिए रोटी अगर नहीं तो फिर दूसरे दिन वो कहेंगी मेरा ये खाया, मेरा ये हो गया, ये हो गया, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, रोटी नहीं थी, तो ये चीजें लोग बहुत करते हैं। अच्छा मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने घर से ले जाते हैं कि भाई क्योंकि ये चीज़ नहीं, हमारा बच्चा ये चीज़ स्पेसिफिकली खाता है, हम घर से ले आए हैं। बच्चे नहीं ना, बड़ों की बाहर लेकर बड़े भी मैंने सब अपन को देखे वो अपनी रोटी ले जाते हैं कि भाई हमें फलानी हमारी रोटी थोड़ी घी में बनी हुई होती है, जैसे अब मैं तो ले जाऊं वो वाली रोटी, 3 आटों की रोटी। दावतों की बात कर रही हैं, मेरे ससुर का इंतकाल हुआ था और उस वक्त खाना जब शाम में सर्व हो रहा था तो एक खातून के लिए चावल नहीं है। वाओ, मुझे तो इन घरों में खाना सर्व करना ही अच्छा एक्चुअली नहीं, देखें होता है मैयत वाले घर में खाना उन लोगों के लिए होता है जो शहर से बाहर से आते हैं और उधर रुके में, और अगले में इतनी ऑडेसिटी तो होनी चाहिए कि ये अगले से चावल ना पूछे। मैं कहती हूँ आपके नेक्स्ट डोर नेबर आए हुए हैं ना, वो भी बैठ जाएंगे खाने के लिए, तो ये रिवायत बहुत गलत है, बहुत बुरा लगता है मुझे तो। चलिए मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे बताएं आप गुर बताएं, सदा जवान रहने का आपके नजदीक गुर क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग और कहीं ना रुकें, रुकना मना है, ये एक टैगलाइन होनी चाहिए आपके सिस्टम में, और सिर्फ पॉजिटिव चूज करना है, नेगेटिव को देखना ही नहीं। देखें अल्लाह ने पॉजिटिव बनाया है, नेगेटिव हम खुद अपने अंदर क्रिएट करते हैं। अगर उस क्रिएशन को हम रोक दें बनाना, तो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है दुनिया में। क्योंकि अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं लिटरली उनकी शक्ल पे आ जाता है। शक्ल बिल्कुल आता है, आपके ऑरा में आता है, आपकी शक्ल में आता है, आपकी बातों में आता है, आपके फेस पे आता है, इट्स एवरीवेयर। आप बताएं, आप क्या गुर देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं कहूँगी कि इन वन वर्ड अपने से प्यार करना सीखें। वैसे आपने अपने से प्यार करना कब सीखा? जैसे मैंने पूछी थी कि जब बच्चे, आपने अपने आप से प्यार करना कब सीखा? मैं बचपन से अपने आप से प्यार करती थी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना प्यार मिला बचपन में कि वहाँ से ऑनवर्ड्स मुझे लगता था कि मैं किसी पर्पस के लिए इस दुनिया में आई हूँ। और जापानीज में तो एक प्रॉपर टॉपिक होता है इकिगाई, मेरे पास बुक है, पर्पस ऑफ योर कमिंग टू द वर्ल्ड। तो खैर अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को टाइम दें, एक थोड़ा सा अकेले टाइम, मी टाइम जो होता है, मुझे लगता है नमाज़ पढ़ते हुए बहुत अच्छा मी टाइम होता है कि जब अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं, आप अकेले होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। सो दैट्स लाइक दैट रियली कंट्रीब्यूट्स। और जैसे मैंने पहले कहा था, फॉरगेट, फॉरगिव, नेगेटिव लगेज को पीछे छोड़ें, आगे का देखें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की ब्लेसिंग समझ के गुजारें। उम्र जो है अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, एक बोझ नहीं है। हाँ बिल्कुल। और मैं अपने आप को भी प्यार करना शुरू करूंगी। अब मैं सोच रही हूँ मुझे फाइनली अपने आप को प्यार करना चाहिए। तो आप मेरे आपने मेरे शो का इंतजार किया कि मध्या के शो में जाके डिस्कस अब मैं आज डिसाइड कर रही हूँ कि अब मैं आज के बाद से अपने आप से अच्छा ये डिसाइड करने कौन है? आज ये डिसाइड करने तो होता है कि अच्छा 5:05 पे अपने आप से प्यार। मदिया मैं सरकास्टिकली बोल रही हूँ बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं ना, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि तू सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। ये बहुत करती है खुद से प्यार। चलिए तो अच्छी बात है। तो मैं इसलिए वो सरकास्टिकली बोल रही हूँ कि अब मैं अपने आप से वाकई प्यार करूँगी। हम लोग जो बेचारे नहीं जानते थे, हमें क्या पता था क्या हमें तो लगा कि यार ये भी मासूम हमारी बहन, इनको भी सेल्फ लव की भी तक, क्योंकि हम भी लिटरली अभी तो उसमें ही है कि जी सेल्फ लव आना कैसे। मुझे कभी कभी लगता है हमारे अम्मा अब्बा का बड़ा इसमें कसूर है कि उन्होंने इतना सेल्फ लव हमें, क्योंकि उनमें भी नहीं था ना। बस क्विकली आपसे भी आखिरी गुड सीखना, आप अगर कुछ चेंज चाह रहे हैं ना,
اپنی زندگی میں تو خود کو چینج کریں, خود کو مولڈ کریں. دنیا پوری آپ کے لیے چینج نہیں ہوگی. آپ نے دنیا کو چینج کرنے کے لیے خود کو خراب نہیں کرنا. وہ ہے نا کیچڑ سے خود بچ کر نکلنا ہے, ورنہ کیچڑ کو تو بڑا گھمنڈ ہے کہ مجھ سے ڈرتے ہیں لوگ. یس, کیا پیاری بات ہے. اسی بات پہ جناب تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جب بھی آتی ہیں خواتین میں ان سے بہت سیکھتی ہوں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.